Hello everyone, welcome to CSR's UPC online classes. So this video will be on modern history topics. Modern history topics. There is another series which only consists of MCQs. I'll be putting the link in the description. It will only consist of 10 MCQs per video. So there are already 5 videos, so around 50 MCQs are already available. I'll be putting next MCQs on that particular playlist. So in this particular playlist, it is modern history topics. It will be the fifth video. Today will be the fifth lecture. My last lecture was on flag satyagraha, which was in news recently. I've already covered on RR movement, already covered on Peel Commission. Then I have also taken a lecture on cow protection movement in modern history. So you can go to my playlist and check for modern history topics. You can get these topics and you can just go through and keep notes of them. It can help you in prelims, even in mains also. All these stuffs are value addition. You must be going through the basic books, that is okay, but these videos will help you in kind of a value addition, because exam has become very dynamic in nature, and the more you know, it is good for you, so that you can eliminate options. If a difficult question comes, you can eliminate options. It helps. Okay, so we'll be starting today with sword satyagraha and Neel statue satyagraha. So what is sword satyagraha and what is Neel statue satyagraha? So these are two satyagraha which happened in 1927-28, during that time, before Simon Commission, and it is related to K. Kamraj. So here we'll be learning about a personality, K. Kamraj. Okay, so Sword Satyagraha. Sword Satyagraha was led by K. Kamraj. Now K. Kamraj was a very important person, I'll tell you, because we'll be learning about him in this particular video. So it was led by K. Kamraj. After his participation in the Vaikom Satyagraha, Vaikom Satyagraha is a very common stuff. We all know, in the book it is mentioned. He also participated in Vaikom Satyagraha. And this Vaikom Satyagraha was his first participation in a Satyagraha. It was his first participation in a Satyagraha. Okay, he had participated in Vaikom Satyagraha. Kamraj became more and more involved in the national movement for independence. After his participation in Vaikom Satyagraha, he became more and more involved in the national movement. Okay, and during that time, the flag satyagraha of Nagpur, my last video in this particular modern history topics was on flag satyagraha, which is in news. Currently it is in news. So flag satyagraha was an opportunity for him to participate. Okay, so he even reached Nagpur to take part in the flag satyagraha, but the plan was withheld, as because an agreement was reached between the Congress and the British. This particular thing we had already covered in our last class. In last lecture in flag satyagraha, I told it was going on, but kahin na kahin it faded, because there was an agreement between the INC and the British. So this flag satyagraha was an opportunity for him, was an opportunity for Kamraj. He participated because he went there, but when he went there, the flag satyagraha, after some days, it faded away. Okay, so if question comes, he was related to flag satyagraha. Yeah, he was related, but flag satyagraha did not like ज़्यादा दिन तक टिका नहीं. Okay, fine. So the British government had also banned Indians carrying of arms like daggers, spear, etc., etc. This was vehemently opposed. British government during that time had banned the Indians कि आप लोग ये सब चीज like spear हो, dagger हो, ये सब चीज आप पकड़ के नहीं जा सकते, मतलब होल्ड करके नहीं जा सकते. So it was vehemently opposed by the Indians. So यहीं से शुरू हुआ sword सत्याग्रह. यहीं से ही शुरू हुआ था. तो अगर पूछा जाएगा कि सोर्ड सत्याग्रह हुआ तो इस टाइम पे, लेकिन क्यों हुआ था? द रीजन वाज दिस, बिकॉज द गवर्नमेंट हैड बैंड like carrying of arms like dagger, spear and all. So that's why the name is sword satyagraha, and the place is Madras. It happened in Madras in 1927. So chronology बहुत जरूरी है. 1927 में हुआ था, मद्रास में हुआ था. तो ये जो सत्याग्रह है, it was led by Kamraj. First of all, he marched through the streets carrying aloft swords and propagating among the people that
द पीपल द इनएलिएनेबल राइट टू बियर आर्म्स। तो उन्होंने बाहर जाके ही प्रोपागेटेड, ही प्रमोटेड और ही टोल्ड द पीपल इट इज आवर राइट, हम आर्म्स पकड़ के जा सकते हैं, इट इज आवर राइट, नोबडी कैन टेक दिस राइट। सो उसी के अगेंस्ट में ये स्वॉर्ड सत्याग्रह हुआ था। और हमको पता है इन नॉर्मल बुक्स ऑल्सो इट इज रिटन 1927 में जब ये सत्याग्रह हो रहा था, तब मद्रास का आईएनसी सेशन में भी 1927 में एम ए अंसारी प्रेसिडेंट थे। इसी में गांधी और कामराज, महात्मा गांधी और कामराज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, he met for the first time। और 1927 मद्रास सेशन में जवाहरलाल नेहरू had moved the resolution for complete independence। now ये जो दो पॉइंट है ये मैंने बस मेंशन किया है so that you get a link, because these two points are common points, it is mentioned in normal basic books। so जब आप ये पढ़ रहे हो तो एक लिंक बन जाए आपका, चलो ठीक है अब मद्रास में ये चीज हुआ था, उसी टाइम पे आईएनसी सेशन मद्रास में हुआ था, एम ए अंसारी प्रेसिडेंट थे और गांधी जी और मिस्टर कामराज ऑल्सो मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसी सेशन में 1927 सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी हैड मूव्ड द रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये दो चीज हमको पता है, अगर आपने अच्छे से बेसिक बुक्स भी किया है तो ये आपको पता ही होगा। तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हाँ कनेक्टिविटी मिल जाए, चाहिए ये चीज नया चीज है, ये पुराना चीज है, जैसे कि 27 सेशन में ये हुआ था। सो एक कनेक्टिविटी मिल जाता है कि हाँ दिस इज द होल इवेंट व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके ठीक है, तो ये हो गया स्वॉर्ड सत्याग्रह। तो जस्ट कुछ महीने बाद उसी साल 1927 सेम ईयर एक हुआ था नील स्टैचू सत्याग्रह। नील स्टैचू सत्याग्रह क्या है, आप ये वर्ड अब देखोगे आपको लगेगा कि ये कुछ आउट ऑफ द कोर्स है, वैसा कुछ नहीं है। एक साल पहले जब मैंने फ्लैग सत्याग्रह भी कराया था, कुछ बच्चों ने बोला कि ये आउट ऑफ द कोर्स है, वैसा कुछ नहीं। आज ये न्यूज में है तो वो न्यूज बन जाती है, अगले साल या फिर 2 साल बाद कभी भी ये भी न्यूज बन सकता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट। नाउ 1857 रिवोल्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन टॉपिक, सबको पता है। Now we will get to know how it is related, how this Neil Statue Satyagraha is related to a 1857 revolt. You will come to know. Okay, so it started in 1927. Okay, just after the sword Satyagraha हुआ था। It was also led. It was also led by कामराज। See देखो यहाँ पे led है, अगर क्वेश्चन अगर it was started by कामराज तो गलत हो जाएगा। कामराज ने स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्ट ने किसी और ने किया था, मैंने लिखा है आगे। सो आफ्टर द सोर्ड सत्याग्रह के बाद ही नील स्टैचू सत्याग्रह हुआ था। तो हमको एक चीज पता चल गया कि क्रोनोलॉजी, सोर्ड सत्याग्रह अगर पहला है तो उसके बाद नील स्टैचू सत्याग्रह हुआ था। ओके, तो ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो जानना बहुत जरूरी है। इट वाज एन agitation that took place in Madras Presidency in 1927 demanding the removal of the statue of Colonel James Neal। नील स्टैचू, तो जेम्स नील का एक स्टैचू वहां पे बना था, उसको निकालने के लिए इंडियंस ने एक डिमांड किया था। और ये जो स्टैचू ये माउंट रोड मद्रास में बना था, ऑब्वियसली ब्रिटिश ने किया था ये स्टैचू। तो ये कॉलोनल जेम्स नील, हु इज ही, क्यों उनका स्टैचू बना था और क्यों ये उसको निकालने की बात कर रहे थे, व्हाई द इंडियंस वर डिमांडिंग कि इसको निकाला जाए, इसको रिमूव किया जाए। सी, जेम्स नील प्लेड अ मेजर रोल in putting down the Indian rebellion of, it's not eight, it's 1857 of 1857, और and he was killed during the siege of Lucknow। अब जब which is a part of 1857 revolt, 1857 revolt बहुत साल पहले 1857 revolt जब हुआ था, तब इंडियन रेबेलियन जो आया तो उसको लाइक कॉम्बैट करने के लिए कॉलोनल जेम्स नील ब्रिटिश के तरफ से ही प्लेड अ वेरी मेजर रोल। और सीज ऑफ लखनऊ में वो लाइक ही वाज आल्सो किल्ड, ही वाज आल्सो किल्ड। तो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़े आदमी है, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े आदमी है। ही वाज किल्ड ड्यूरिंग द सीज ऑफ लखनऊ। तो उसी के आधार पर उनको एक कमेमोरेट करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था, उनका एक स्टैचू बना दिया था। सो अ स्टैचू ऑफ हिज वाज प्लेस्ड एट द माउंट रोड। यही चीज इंडियंस को अच्छा नहीं लगा, इंडियन नेशनलिस्ट को अच्छा नहीं लगा। सो दिस बिकेम अ टारगेट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। सो दिस इज द रीजन क्यों ये जेम्स नील स्टैचू बना था और क्यों ये एजिटेशन हुआ था और ये सत्याग्रह क्यों हुआ था। सो दिस इज द रीजन। सो द पॉइंट इज हियर, इफ यू सी 1857 रिवोल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1857 रिवोल्ट ये सबको पता है कि क्या बेसिक चीजें तो सबको पता ही है। नाउ दिस ये बहुत सालों बाद हो रही है, 1927 में हो रही है ये सत्याग्रह, बट इट इज रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट। तो कनेक्टिविटी आ जाती है। ओके ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें क्या हुआ था, द मद्रास महाजन सभा,
वेरी कॉमन थिंग, पता है हमको. एंड द मद्रास प्रोविंशियल कमिटी ऑफ INC, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे पास्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग इट्स रिमूवल. इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हमको ये स्टैच्यू, वी वांट टू रिमूव दिस स्टैच्यू. और शुरुआत अगर किसने किया था, जैसे कि मैंने बोला, शुरुआत इन्होंने किया था. रिमेंबर, कामराज ने इसको आगे तक लेके गए. कामराज काइंड ऑफ लेड द मूवमेंट टू अ बिग स्केल, बट the agitation or the agitator was started by SN Somayajalu of तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु में. So it was started by him. बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट भी हुए थे इस सत्याग्रह में. फिर देन कामराज बिकेम द लीडर ऑफ दिस एजिटेशन. तो यहाँ पे कामराज काफी जब अरेस्ट सब हो गए तो कामराज स्टार्टेड मेकिंग दिस सत्याग्रह टू अ बिग लेवल, टू थोड़ा अच्छे लेवल पे, अच्छे स्तर पे लेके गए. महात्मा गांधी ऑल्सो विजिटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. आई सेड कि 1927 सेशन, उसी टाइम कामराज से मिले भी थे महात्मा गांधी. महात्मा गांधी हु विजिटेड द मद्रास ड्यूरिंग द सेम टाइम, ही गेव हिज सपोर्ट. तो इस सत्याग्रह को भी महात्मा गांधी ने सपोर्ट दिया था. क्वेश्चन उल्टा करके आएगा कि महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट, ऐसा नहीं है. लेकिन ये जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो सत्याग्रह है, इट द एजिटेशन लॉस्ट स्टीम आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, गिविंग वे टू द साइमन कमीशन. फिर उसके बाद साइमन कमीशन आ गया, और साइमन कमीशन से हमको पता है कि क्या हुआ था, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ आवर बेसिक बुक्स. तो अगर क्रोनोलॉजी आ जाए तो साइमन कमीशन से पहले, ये जस्ट पहले ये हुआ था. तो साइमन कमीशन, क्योंकि आसपास हो रहा है सब, 1927 28 सब आसपास हो रहा है, मंथ का डिफरेंस है बस, तो इसलिए क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी किसके बाद क्या है. बिकॉज क्वेश्चन आजकल क्रोनोलॉजी के आ रहे हैं. लास्ट 2 से 3 साल का ट्रेंड देखेंगे तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री ले लो, मॉडर्न हिस्ट्री ले लो, तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आर कमिंग. ओके, तो ये साइमन कमीशन से पहले हुआ था. इट वॉज बिफोर, जस्ट बिफोर द साइमन कमीशन. ओके, अगर हम ये सब पढ़ रहे हैं तो के कामराज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज द नेम इज कमिंग मीन्स वी ऑल्सो शुड नो हु वाज के कामराज, उनका क्या था. के कामराज वाज born in Tamil Nadu. Remember, he was born in Tamil Nadu, South Indian the, and he became a part of the Congress when he was 18 years old. He was very active in the freedom movement. He took part in non-cooperation movement में भी लिए थे. लेकिन non-cooperation movement was not a satyagraha. It was a non-cooperation. There is a difference between satyagraha. There is difference between non-cooperation. There is difference between civil disobedience. Okay. तो उनका पहला सत्याग्रह वाइकम था, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने बता दिया था. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो वाइकम सत्याग्रह, देन फ्लैग सत्याग्रह भी उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प किया था. फिर सोर्ड सत्याग्रह, फिर नील स्टैच्यू सत्याग्रह. फिर उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में भी पार्ट लिया था. वेदरण्यम सॉल्ट सत्याग्रह, दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साउथ में, which was led by C. Rajagopalachari. We all know this is a common thing. C. Rajagopalachari, वेदरण्यम, सॉल्ट सत्याग्रह, ये तो कॉमन चीज है. C. राजगोपाल लेड किए थे. लेकिन इसी सॉल्ट सत्याग्रह में कामराज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, तो ये सबके सब में प्री इंडिपेंडेंस. नाउ दीज आर ऑल प्री इंडिपेंडेंस में कामराज टुक पार्ट इन ऑल दीज थिंग्स. ओके, और ये जो चीज मैंने लिखा है, ये सबके सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है. नॉन कोऑपरेशन, वाइकम, फिर फ्लैग, सोर्ड, नील स्टैच्यू सत्याग्रह, फिर 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है. ओके, फाइन. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या इनका था? पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी काफी काम किए थे इन्होंने. 1946 में ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मद्रास प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी. जस्ट इंडिपेंडेंस से जस्ट इमीडिएटली, जस्ट थोड़ी दिन पहले, तो 1 साल पहले. फिर 1963 में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1963 में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC. और उस टाइम पे उन्होंने एक चीज किया था जिसका नाम है कामराज प्लान. यहाँ पे मैंने लिखा है, आई विल कम टू दैट. फिर 1954 to 1963 में he was the Tamil Nadu chief minister 3 consecutive times. He was so popular during that time. Okay, so Kamaraj introduced the midday meal scheme in 1960s to provide at least 1 meal a day to school children. तो midday meal scheme के साथ भी वो introduced है, वहाँ पे उन्होंने किया था. He strived to eradicate illiteracy by introducing free and compulsory education to up to 11th standard. तो education में भी काम किया था. One more important point, Kamaraj and Vishnuram Medi, who was the governor during that time, that took efforts to establish IIT Madras. IIT Madras in 1959 उन्होंने किया था. मतलब that किया तो नहीं था, that took efforts to establish that IIT Madras. सबसे important point जो इस total इस slide में जो कि important है, वो है कामराज plan. In 1963, Kamaraj suggested Jawaharlal Nehru that Congress leaders should leave
मिनिस्टरियल पोस्ट टू टेक अप मोर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, इसी प्लान का नाम है कामराज प्लान. नाउ दिस क्वेश्चन हैड कम इन 2008 और 2009 एंड एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, उसी के आसपास GS1 मेंस में आया था. आप देख सकते हो 8, 9 या 10 उसी के आसपास ही उस टाइम क्वेश्चन आ रहे थे. कामराज प्लान का एक क्वेश्चन आया था. एंड कामराज प्लान इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो हमारा कोर्स है पोस्ट इंडिपेंडेंस, कामराज प्लान उसी का प्लान है. कामराज प्लान में मैं हिंदी में बोल देता हूँ पहले. कामराज प्लान ये है जब उस टाइम कांग्रेस लीडर्स वर लूजिंग. कांग्रेस लीडर्स 1960 में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन बहुत हो गया था, तो उस टाइम पे दे वर लूजिंग, लोगों के लिए काम नहीं करते थे. तो उस टाइम पे कामराज ने बोला कि सब कांग्रेस लीडर अपना मिनिस्टरियल पोस्ट छोड़ देंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करेंगे, लोगों तक जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे काम करो, अपना पोस्ट छोड़ दो, ग्राउंड लेवल पे काम करो. और ये कामराज प्लान रिसेंटली दिल्ली में भी किसी ने इसका जिक्र किया था कि हमको कामराज प्लान करनी चाहिए दिल्ली में, बिकॉज आज के डेट में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं लूज कर रही है. सो इसी कामराज प्लान का जिक्र हुआ था पेपर में भी, हिंदू या फिर कहीं पे भी आया था 1-1.5 साल पहले. So Kamra's plan is that plan. It is very much required. Okay. 6 union ministers and 6 CMs to become the prime minister and brought in 2 other prime minister, लाल बहादुर शास्त्री and इंदिरा गांधी. तब इस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी सब आए थे. इवन कामराज को भी बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन कामराज वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. ही वाज मोर इनटू द रियल वर्क. वो काम, लोगों के लिए काम करना चाहते थे. ओके. तो ये इनका थोड़ा बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टफ है. यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट है कामराज प्लान. आप जरूर यू हैव टू रिमेंबर इट, बिकॉज ये क्वेश्चन आया, एक बार आया था तो आ सकता है, कभी भी आ सकता है. काफी साल पहले आया था. ओके ओके फाइन. सो एक चीज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी लिख दिया है, तो ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, बिकॉज क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज वाइकम सत्याग्रह 24-25, फ्लैग सत्याग्रह, देखो फ्लैग सत्याग्रह 23-25 आसपास हुआ था. तो ये जब आसपास हुआ था तो कभी भी, क्योंकि वाइकम सत्याग्रह जब खत्म हो गया उसके बाद फ्लैग सत्याग्रह खत्म हुआ. आसपास शुरू हो गया था लेकिन उसके जस्ट बाद खत्म हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको नंबर 2 पे रखा है. sword सत्याग्रह जस्ट इमीडिएटली, थोड़ी देर बाद, सम मंथ्स आफ्टर सम मंथ्स ऑफ फ्लैग सत्याग्रह ऑफ नागपुर इट हैपेंड. फ्लैग सत्याग्रह ऑफ नागपुर मैंने मेरा लास्ट वीडियो में कर लिया है. You can check, you can go to the last video just before this video, you can check. sword सत्याग्रह 1927, immediately after some months नील चतुर सत्याग्रह, के कामराज का अभी हमने बात किया, we just discussed. फिर सॉल्ट सत्याग्रह इज ए कॉमन टॉपिक, CDM गांधी जी बुक्स में है. फिर उसके बाद शिवापुर ध्वजा 1928, दिस इज ऑल्सो ए फ्लैग सत्याग्रह which I have already covered in my last video. शिवापुर ध्वजा सत्याग्रह मैंने इस टॉपिक में कराया है लास्ट वीडियोस में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए फ्लैग सत्याग्रह. ओके. फिर फाइनली 1939 में एक राजकोट सत्याग्रह हुआ था. राजकोट सत्याग्रह इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज रिलेटेड टू नथिंग रिलेटेड टू दिस, इट इज रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स, और हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्रजामंडल मूवमेंट्स. प्रजामंडल movement. Prajamandal movement is a very important component of static part, static modern history. अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लें. अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन में इसका भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दिस इज मैं इंफॉर्मेशन चेक के लिए बोल देता हूँ. इट इज इम्पोर्टेंट. इसका मेंस क्वेश्चन भी आ रखा है, मैंने अपने मेंस कोर्स में भी इसका एक मेंस क्वेश्चन कराया था. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रीलिम्स. ऑल्सो प्रीलिम्स में बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. तो राजकोट सत्याग्रह इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट सत्याग्रह. प्रिंसली स्टेट जो रिवोल्ट किए थे, एंड में किए थे, इनिशियल टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स नहीं कर रहे थे. तो 1930s के बाद, 1935 के बाद दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग. उनमें से एक रिवोल्ट ये है राजकोट सत्याग्रह. ओके. अगर किसी को पता नहीं है, आप इसको अलग से सर्च करके देख सकते हैं, और टाइम मिलेगा तो आई विल कवर दिस ऑल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ स्टफ्स आर देयर. इट इज इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन यूट्यूब. ओके. सो दिस क्रोनोलॉजी आप याद कर लेना. सो दैट्स इट. ये मेरा एक टेस्ट सीरीज चलता है. यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड चेक द टेस्ट सीरीज, एंड दिस इज माय वेबसाइट csrclasses.in. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, click the bell icon. You can share among your students or your friends, so that they can also get some really good information regarding prelims. Okay, thank you.